Good morning to all my students of class 10th. Now today we will start the revision of term 2 syllabus. As you know that in mathematics syllabus has been finished. सिलेबस पूरा हो चुका है आपका टर्म 2 का। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से आपका रिवीजन। एंड इन द रिवीजन पोर्शन वी हैव द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So first of all, what is the definition of quadratic equation? What is the form of quadratic equation? How we can solve or how we can find the roots of this equation? And what is the procedure to find the roots? How many methods? Then nature of roots. How we can find the nature of roots? So these terms will be discussed today in this video. So first point is the definition of quadratic equation. Definition of quadratic equation. An equation is said to be quadratic equation if it contains the form ax square plus bx plus c is equals to 0. But remember, a never equals to 0. a कभी भी 0 नहीं होगा. So ax square plus bx plus c is equals to 0 is the standard form of quadratic equation. And due to the power 2, the roots, or we can say in other words zeros, solution of this equation will be maximum 2. So we can find the maximum 2 zeros regarding to this equation with the help of 3 methods, in which first is factor method, second is completing square method, and third is D formula or Sridharacharya formula. So by these 3 methods we can find the zeros or roots or solution of this equation. But now at this time only 2 methods is in your syllabus, factor method and D formula, means Sridharacharya formula. Completing square method is not in your syllabus. Clear? So here we will discuss only 2 methods to find the zeros of this equation. Clear? So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन। ये मेथड पढ़ते आ रहे हैं आप बचपन से, क्लास 7th 8th 9th। सो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज वी हैव अ इक्वेशन लाइक दिस 5x square plus 4x minus 1 is equals to 0. We have this quadratic equation 5x square plus 4x minus 1. तो सबसे पहले हमें करने हैं इसके फैक्टर। तो फैक्टर करने का रूल क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म, अ टर्म इन विच x is not included is said to be a constant term. So first of all, constant term multiplied by the coefficient of x square, which is 5. So 5 into minus 1, sorry 5 into 1, result will be 5. उसके बाद 5 के आप ऐसे 2 फैक्टर कीजिए, 5 के ऐसे 2 फैक्टर कीजिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5 मिले, बट जब हम उनको माइनस करें तो हमें 4 मिल जाए। ठीक है, एंड दैट विल बी 5 and 1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मिलेगा, और जब हम 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। सो 5x square plus 5 minus 1 into x minus 1 is equals to 0। तो इस तरह से मैंने 4 को लिख दिया है 5 minus 1। अब इसको ओपन कीजिए। सो 5x square plus 5x minus x minus 1 equals to 0।
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब इन दोनों में से 5x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, आ जाएगा x plus 1. So x plus 1, these two term is same. तो हम यहाँ पे दोबारा से कॉमन ले लेंगे x plus 1. तो जब हम दोबारा से कॉमन लेंगे x plus 1, यहाँ से बचेगा सिर्फ 5x, यहाँ से बचेगा -1. So 5x minus 1. क्लियर? सो इस तरह से मेरे पास में दो फैक्टर आ गए, x plus 1, 5x minus 1. और आप देख सकते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 0 है. अब यहाँ पे आने के बाद हम अप्लाई करेंगे जीरो प्रोडक्ट रूल. अब ये रूल क्या होता है जरा वो सुन लीजिए. जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग जब दो फैक्टर की मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 0 होती है तो हम उन दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के बराबर रख सकते हैं, जिससे कि वहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिल जाएंगी. क्लियर? तो सबसे पहले आप रखिए अपने फर्स्ट फैक्टर को इज इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज x plus 1 is equals to 0. दिस इंप्लाइज x equals to -1. उसके बाद रखिए आप अपने दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर. इट मींस 5x minus 1 is equals to 0. x equals to 1/5. सो इस तरह से हमारे पास फिलहाल आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में जिसे हम लेके चले थे इक्वेशन 5x² plus 4x minus 1, हमने इसको फैक्टराइज किया, अपना फर्स्ट मेथड यूज किया. यूज करने के बाद हमारे पास फिलहाल दो रूट आ चुके हैं. वी हैव टू रूट्स. फर्स्ट इज -1, सेकंड इज 1/5. बट व्हेनेवर यू वांट टू चेक आउट दैट इज इट रूट्स और नॉट, then substitute these values of x into the equation, and if you obtain 0 equals to 0 then these are roots, otherwise not. यदि आपको चेक करना है कि ये रूट्स हैं या फिर नहीं है तो इनको आप अपनी इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर दीजिए एट द प्लेस ऑफ x. सिंप्लीफाई कीजिए. इफ दीज वैल्यूज ऑफ x satisfy to the equation then these are roots, otherwise not. क्लियर? तो चलिए फटाफट हम लेके चलते हैं फिर अनदर एग्जाम्पल. अनदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं. यहाँ पे आप एक बात और ध्यान रखें, किसी भी इक्वेशन में यदि x² की टर्म है फिर चाहे कोई और हो या ना हो तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है? लेकिन यदि उसमें x² नहीं है, मान लो इक्वेशन में 5x plus 2 है इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे x² की टर्म तो नहीं है, तो इस केस में हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे. तो कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनेगी जब वहाँ पे x² अवेलेबल होगा. यदि x² नहीं है बाकी सब कुछ अवेलेबल है तो वो फिर हो जाएगी लीनियर इक्वेशन. ठीक है? x² इज द मेन टर्म दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इक्वेशन, अदरवाइज दैट इक्वेशन विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है? तो चलिए मैं लेके चल रहा हूं अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज x² 4x² plus 6x minus 4 is equals to 0. It is another quadratic equation. So in this quadratic equation coefficient of x² is 4, constant term is 4. दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. इट इज द रूल ऑफ फैक्टर मेथड कि कोफिशिएंट ऑफ x². एक बात और सुन लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4, constant term is 4. दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. इट इज द रूल ऑफ फैक्टर मेथड कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4, constant term is 4. 4 एक बात और सुन लीजिए,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। बाय द वे, यदि यहाँ पे हो जाए -4, यदि यहाँ पे हो जाए -4, तो सबसे पहले आपको उस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ध्यान रहे ये बात आपको। यदि उस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 है या -2 है या माइनस लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाइए। यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे? माइनस से मल्टीप्लाई करके। क्लियर? तो चलिए अभी हम 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 में। तो 4 into 4 result is 16। 4 4 जा 16। क्लियर? अब इसके बाद में 16 के आप ऐसे दो फैक्टर कर लीजिए कि जब उनको मल्टीप्लाई करें रिजल्ट आ जाए 16। जब उनको मल्टीप्लाई करें रिजल्ट आ जाए 16, और जब उन्हीं को हम माइनस करें तो रिजल्ट मिल जाए 6। दोबारा फिर सुन लीजिए, जब हम उन दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करें रिजल्ट मिले हमें 16, लेकिन जब उनको माइनस करें तो रिजल्ट मिले 6। दैट विल बी 8 and 2, बिकॉज 8 2 जा 16। क्लियर? तो चलिए आगे फटाफट। 4x स्क्वायर प्लस, अब जो ये 6 आप देख रहे हैं, इस 6 को लिख दीजिए 8 - 2। 8 - 2 into x - 4 is equals to 0। इसको ओपन कीजिए ब्रैकेट को। सो 4x स्क्वायर प्लस 8x - 2x - 4 is equals to 0। अब यहां से कॉमन लीजिए आप 4x, तो आ जाएगा x + 2। इन दोनों में से कॉमन लीजिए -2, तो आ जाएगा x + 2 is equals to 0। अब ध्यान से देखिए x + 2 यहाँ पे भी है और इधर भी है। x + 2, x + 2 इज अ कॉमन फैक्टर, तो इसको कॉमन ले लीजिए बाहर। तो हम कॉमन ले लेंगे x + 2 को, हमारे पास बचेगा 4x - 2 is equals to 0। क्लियर? सो इस तरह से हमारे पास आ गए दो फैक्टर x + 2 4x - 2। क्लियर? तो इसके बाद में हम अप्लाई करेंगे जीरो प्रोडक्ट रूल। सो अकॉर्डिंग टू द जीरो प्रोडक्ट रूल, these two factor will be equals to 0 separately। सो हम यहाँ पे रखेंगे x + 2 is equals to 0, 4x - 2 is equals to 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2/4, इट मींस 1/2। So in this way we have two value of x. First is -2, second is 1/2. So in this way we have two roots of this quadratic equation, 4x² + 6x - 4। क्लियर? चलिए अब हम लेके चलते हैं अनदर एग्जाम्पल। Suppose we have a question like this.
ये मेरे पास क्वेश्चन है, -2x² - x + 10 = 0। क्वेश्चन मैंने खुद बनाया अपनी तरफ से ही। अब हमें करने हैं इसके फैक्टर और फाइंड करनी है 2 zeros 2 रूट्स 2 सॉल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ध्यान देंगे रूल पर। रूल क्या है? फैक्टर मेथड इज अलाउड ओनली व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव। बट यहाँ पे क्या हो चुका है? -2। सो -2 को बनाओ +2। कैसे? माइनस से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय -1 v है। तो सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 2x² + x - 10 = 0। क्लियर? यहां तक आप सब आ गए। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x² 2 है, कांस्टेंट टर्म 10 है। सो 10 × 2 रिजल्ट विल बी 20। 10 × 2 रिजल्ट इज 20। तो इसके बाद में 10 × 2 रिजल्ट इज 20। सो 20 के आप ऐसे दो फैक्टर कर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, माइनस करें तो 1 मिल जाए। सोचिए आप ध्यान से, 20 के ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए, और जब उनको हम माइनस करें तो 1 मिल जाए। इट मीन्स 5 and 4। 5 and 4। सो 2x² प्लस, अब ये जो आप 1 देख रहे हो, इस 1 को मैं लिख सकता हूं 5 - 4। तो 5 - 4 × x - 10 = 0। Now open the bracket which is 2x² + 5x - 4x - 10 = 0। Now कॉमन लीजिए, कॉमन will be x, so we have 2x + 5। अब यहां से कॉमन आएगा केवल -2, so we have 2x + 5 = 0। Now 2x + 5 आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जगह पे अवेलेबल है। सो 2x + 5 को आप दोबारा से कॉमन ले लीजिए, तो फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा? x, सेकंड टर्म में से बचेगा -2। सो वी हैव x - 2 = 0। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर 2x + 5 and x - 2 is 0. So these two factor will be equals to 0 in a separately way. So we can write here 2x + 5 is equals to 0. It means first factor is equals to 0, then second factor is equals to 0. From the first factor, value of x is -5/2. From the second factor, value of x is 2. So two roots or two zeros are -5/2 and 2. This is the required answer of the given quadratic equation. So इस तरह से आप फैक्टर करते हैं। फैक्टर मेथड फिनिश हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड, डी फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला, और डिस्कस करेंगे हम उसको। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे के चलते हैं फटाफट।
चलिए मेथड 2, और मेथड 2 क्या है रोशन कीजिए। मेथड 2 है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और डी फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेके चलता हूं। प्रोसीजर पहले आप सुन लीजिए क्या होता है प्रोसीजर। आपको जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसके सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, विच इज ax² + bx + c = 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b and c. a means coefficient of x², b means coefficient of x and c means constant term. After find the value of a, b, c, we will put these values of a, b, c into the formula, which is x = -b plus minus √b² - 4ac upon twice a. So first of all, compare the given equation. This is step 1. First of all, compare the given equation with ax² + bx + c = 0. सबसे पहले आप दी हुई इक्वेशन की कंपेयर कर देंगे ax² + bx + c = 0 के साथ। कंपेयर करने के बाद आपको यहां से a मिल जाएगा, b मिल जाएगा और c मिल जाएगा। जब आप a, b और c निकाल चुके होंगे उसके बाद जाएंगे आप स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि आप a, b, c की वैल्यू को d फॉर्मूला x = -b plus minus √b² - 4ac upon twice a में रखेंगे। जो आपको a, b, c की वैल्यू मिलेंगी उनको आप फॉर्मूला के अंदर रख दोगे, और फॉर्मूला है x = -b plus minus √b² - 4ac upon twice a। तो रखिए फटाफट x = -b, जितना भी आएगा यहाँ रख देना है, फिर b को यहाँ पे रख देना है, ac रख देना है, अपॉन a रख देना है, आंसर आ जाएगा आपका। एक बार लेंगे प्लस साइन तो बनेगा फर्स्ट रूट, दूसरी बार लेंगे माइनस साइन तो बनेगा सेकंड रूट। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सो दिस इज अ प्रोसीजर। चलिए आइए जरा मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन इज 2x² + 5x - 1 = 0। ये मेरे पास क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन फैक्टर मेथड से नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन फैक्टर मेथड से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 × 2 2 और 2 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करें 5 मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसकी कंपेयर कर देंगे ax² + bx + c के साथ, और ऐसा करने से हमें a मिल जाएगा, b मिल जाएगा और c मिल जाएगा। जब a b c मिल जाएगा तो उनको फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला होता है -b plus minus √b² - 4ac upon twice a. So -b, it means -5 plus minus √b² means 25 minus 4ac. 2 into -1 upon twice a is 2. क्योंकि जब करेंगे b² of 5 बने 25। So we have -5 plus minus 25 plus 8 upon 4
-5 प्लस माइनस √33/4। तो यहाँ से एक बार लेंगे पॉजिटिव तो बनेगा फर्स्ट रूट विच विल बी -5 प्लस √33/4। फिर लेंगे माइनस तो बनेगा -5 माइनस √33/4। So these are the two values or two roots of the given equation 2x square plus 5x minus 1. So in this way, by using the method second, you can find the value of two roots regarding to any quadratic equation. Clear? This method is also useful, also important in the case whenever you are not able to find the factors. Remember always, quadratic formula or D formula is also useful in the situation whenever you are not able to do factor. Clear? So whenever factor method is not applicable in the question, then you can use frequently quadratic formula or D formula method. And this method is very simple. First of all, compare the given equation with the standard quadratic equation, which is ax square plus bx plus c is equals to 0, and find the value of a, b and c. After find the value of a, b, c, replace these values of a, b, c into the standard formula. And the formula is x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon twice a. After replacing the values of a, b, c, simplify it, and then first of all take positive sign, then you will obtain the first root. In the second time, replace the minus sign, then you will receive the second root. So in this way you can find the required two roots regarding to any equation by using D formula method. Remember always. So if you have any problem in this video or any question in any example, then you can frequently ask me on a WhatsApp or by call. It's your duty. So please share your problem or doubt with me. If you have any problem in this session, in this video, or in any another question, in any another exercise of term 2, then you can frequently ask any problem anytime, anywhere on WhatsApp or by call.